50 پیشنٹ سو فار اینڈ ابھی ہمارا ڈینٹل کیمپ کی ٹائمنگس ابھی بھی ہے، ویئر اسٹل اوپن. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ابھی تک سو فار ہم نے پیشنٹس دیکھے ہیں ان میں زیادہ یہی مسئلہ آ رہا تھا کہ اس کا دانتوں کو کیڑا لگا ہوا تھا، دانت ایکسٹریکٹ ہوئے تھے، پیریوڈونٹائٹس تھی، مسوڑوں کی انفیکشنز تھی، مسوڑوں سے خون آ رہا تھا. تو اسی لیے ہم نے کوشش کی ہے ہم زیادہ اویئرنیس پھیلائیں کہ ڈینٹل ہائیجین، اورل ہائیجین کا خیال رکھا جائے، دن میں 2 دفعہ پراپر برشنگ کی جائے 2 منٹ کے لیے ہلکے ہاتھ سے، اور ساتھ ہی ساتھ ماؤتھ واش کا بھی استعمال کیا جائے ٹوتھ پیسٹ کے آدھے گھنٹے بعد for 60 سیکنڈ. اس کے علاوہ میٹھا ہم نے ایڈوائز کیا ہے پیشنٹس کو کہ کم میٹھا کھائیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں اپنی ہائیجین کے ساتھ ساتھ، اور باقاعدگی سے ایوری 6 منتھس بعد وہ اپنے ڈینٹسٹ کو وزٹ کرتے رہیں. اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا چیک اپ کیا انہوں نے، بڑی تسلی سے، بڑی اطمینان سے، بڑے پیار سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت دے. میرا نام پادری رفیق جاوید ہے، میں سینٹ لوک چرچ کا انچارج پریسٹ ہوں. 11 سال سے میں یہاں پر خدمت کا حصہ ادا کر رہا ہوں. سینٹ لوک چرچ جو ہے ہزارہ ڈویژن کے اندر اس کی اپنی شخصیت ہے اس چرچ کی، اور یہاں پر لوگ دور دور سے اس چرچ کو دیکھنے آتے ہیں. اس چرچ کو 160 ایئرز ہو گئے ہیں اور یہاں پر یہ سروس ہم ادا کر رہے ہیں. آج ہم خدا تعالیٰ کی شکر گزار ہیں، ہمارے درمیان جناح انٹرنیشنل اسپتال کے لوگ یہاں پر آئے ہیں، ان کا عملہ آیا ہے، ان کے ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز حضرات ہیں، اور ساتھ اسٹوڈنٹس آئے ہیں، اور وہ اس ساری ایکٹیویٹیز کو یہاں پر کر رہے ہیں. یہ فری کیمپ ہے اور خصوصی طور پر کرسچن کمیونٹی کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ ہوں اور آگے بڑھیں، اور اس طریقے سے ہم مل جل کر باہمی اتفاق کا جو ہے اس کو ادا کریں، اور کمیونٹی یہ محسوس نہ کرے کہ وہ منارٹی میں ہے، بلکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم اس ملک کی بقا کے لیے کوشاں رہیں گے، اور ہماری خدمت ان کے لیے بھی جاری اور ساری رہے گی. میرا نام طارق سراج قاضی ہے، میں جناح کالج آف نرسنگ لفٹ آباد کا پرنسپل ہوں. ہمارا جو ہے کریکولم کا حصہ ہے کہ کمیونٹی سروسز ہم دیتے ہیں ڈفرینٹ کمیونٹیز میں جا کے. تو اس دفعہ ہم نے یہ جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو چوز کیا ہے. سر ہمارے ساتھ ہے، وہ آپ کو کمیونٹی کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بتائیں گے. جو ہمارا ہے یہ کلینکل سے ہٹ کے کمیونٹی سروسز میں ہمارا کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے نام سے ایک سبجیکٹ ہے جس میں کمیونٹی وزٹس ہوتے ہیں. تو اسی کے سلسلے میں ہم نے جناح انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ساتھ کولیبریٹ کیا. تو ہمارے نرسز جو کہ انیشیل اسکریننگ کرتے ہیں یہاں پہ، جس میں ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز اور BMI وغیرہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جن لوگوں کو سیشنز کی ضرورت ہے، جن کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ شوگر کیا ہے، اس کی کمپلیکیشنز کیا ہوتے ہیں، تو ان کو ہم پھر سیشنز دیتے ہیں، اویئرنیس سیشن. وہ ہم شائستہ ہائپر ٹینشن کی بھی ہے، ان کو بھی اویئرنیس سیشنز دیتے ہیں، اور ویٹ کس طرح مینیج کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم ڈفرینٹ ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں جس میں گائنیکولوجسٹ ہے، انڈوکرائنولوجسٹ ہے، فزیشینز ہے، ڈینٹل کے ہمارے ڈاکٹرز ہیں. تو ہم ان کی طرف ان کو گائیڈ کرتے ہیں، جو کہ ان کو فری کنسلٹیشن اور اس کے بعد فری میڈیسن دیتے ہیں. جی. تو کتنے وزٹس آپ کے اینولی ہوتے ہیں، کیا ترتیب ہوتی ہے؟ یہ ہمارا چونکہ ایک سیمسٹر میں ایک یہ ہوتا ہے سبجیکٹ، تو آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 4-5 پر سیمسٹر ہمارے اس طرح کے وزٹس ہوتے ہیں. سیمسٹر کی ڈیوریشن جو ہے وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے، جس میں ہمارے 5 سے 6 ہمارے وزٹس ہوتے ہیں کمیونٹی. تو کتنے آپ کا جو سٹاف ہے اس وقت، کتنے لوگ تقریباً سروس کے لیے آئے ہیں یہاں؟ اچھا، یہاں پہ تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے اور ہمارے کلینکل مینٹورز ہیں وہ سب ان کے ساتھ آئے ہیں. اور ہم نے سینئر نرسز جنہوں نے یہ ساری چیزیں تھیوریٹیکل تو سمجھی ہے، لیکن ان کو پریکٹیکل گراؤنڈس پہ کس طرح کیا جاتا ہے، تو ہم نے ان کو انوائٹ کیا. تقریباً کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ تقریباً 60 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، اور 10 ہمارے فیکلٹی ممبرس ہیں. تو کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم، یا اوور آل جو ہم نے ڈیوریشن تو جو گیس کیا تھا تو آلموسٹ ہم نے یہ مائنڈ میں رکھا تھا کہ 200 سے 300 ہمارے اگر پارٹیسپینٹس آتے ہیں تو ہم ان کو سروسز دے سکتے ہیں. میں جاوید ساگر، سوشل آفیسر آف انٹرنیشنل ہاسپٹل. خاص طور پر میں گرلز آف کالجز کے پرنسپل جناب طارق صاحب کا، اور ہمارے پریسٹ جو سینٹ لوک چرچ کے جس ساتھ میں اس وقت یہ گرینڈ میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے، ان کا ہم شکر گزار ہیں. اور ڈاکٹر عبدالخان جدون صاحب کے بھی
जो हमेशा मेडिकल कैंप्स वगैरह में या दीगर सोशल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमारी मिनॉरिटीज़ को हमेशा सर फहरिस्त रखते हैं और उनके तवसत से ये जो इस वक्त मेडिकल कैंप जारी व सारी है इसमें तमाम किस्म के यानी अमराज का जो ब्लड प्रेशर, शुगर, डेंटिस्ट्री का, उसके अलावा गाइनीज, पेडियाट्रिक्स बच्चों के लिए भी है और इसमें हमारे काफ़ी लोग अभी आ चुके हैं और भी आएंगे और उनको न सिर्फ उनकी चेकअप है बल्कि उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं, स्क्रीनिंग की जा रही है, प्लस उनको मेडिसिन भी दी जा रही हैं और जो ज़्यादा क्या उसे कह सकते हैं कि जिन्हें ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत है या ज़्यादा बड़े क्या उसे कहते हैं चेकअप की ज़रूरत है वो हमारा जिना इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वहाँ पे उनको फ्री जो है हम सारी ये फैसिलिटी जो अवेल करेंगे। तो वी आर ग्रेटफुल ऑफ। इस कैंप की ड्यूरेशन कितनी है ये? इस कैंप की ड्यूरेशन जनाब मोहतरम सुबह 10 बजे से जारी है और अभी तक ये दोपहर 2 बजे तक गिरेगा। अगर मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली खान जदून, मैं DMS हूँ, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जिना इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आज हमारे हॉस्पिटल से MOs आए हैं, TMOs और हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आए हैं डॉक्टर जवाद जुवेद, और आज हम लोग फ्री कंसल्टेशन, फ्री स्क्रीनिंग और साथ फ्री मेडिकेशन पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टाफ आज आया हुआ है इस कैंप में जिसमें हमारे सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद हुसैन शाह, फिर हमारे MO जो हैं डॉक्टर तला बेग हमारे SMO, और हमारी TMOs आए हुए हैं गायनी से, और पीडियाट्रिक वार्ड भी है, गायनी आया हुआ है, ENT हमारे आए हुए हैं, डेंटल साइड भी आई हुई है हमारी, और हमारी HOs आई हुई हैं। तो अराउंड हमारे 60 स्टाफ आज जिना इंटरनेशनल हॉस्पिटल से इस कैंप। इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी कोई लाए हुए आप? जी, तो जो भी आज मेडिकेशन लिखी जा रही है हमारे डॉक्टर्स के, तो वो हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी हमारी फार्मेसी सेक्शन में। नाम सुना है, हम वुमेन मेडिकल कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजा है और आज हम सेंट ल्यूक्स चर्च आए हैं जो कि एबटाबाद बाज़ार में लोकेटेड है फॉर फ्री डेंटल कैंप, फ्री नर्सिंग कैंप एंड फ्री मेडिकल कैंप, जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियात हासिल हो हमारे स्किल्स और एक्सपर्टीज़ से। एंड फ्री डेंटल कैंप भी हमने यहाँ पर सेटअप किया हुआ है टू स्प्रेड एज मच अवेयरनेस एज वी कैन फॉर ओरल हाइजीन। और बहुत से पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आए हैं जिनको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि हाउ इम्पोर्टेंट ओरल हाइजीन इज़ और अपने दांतों का और मुंह का ख्याल कितना ज़रूरी है रखना। बिकॉज पीपल थिंक कि हमारा मुंह है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, हमारी बाकी सिस्टमिक डिजीज़ जो हैं दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, इसलिए दांतों की खैर है। बट द थिंग इज़ कि हमारे जिस्म में जो भी सब कुछ एवरीथिंग दैट एंटर्स इनटू आवर बॉडी इज़ फ्रॉम द ओरल कैविटी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, डेंटिस्ट के साथ बाकायदगी से 6 मंथ्स बाद विज़िट करते रहें और अपना ख्याल रखें, स्पेशली विद योर टीथ एंड एवरीथिंग। बिकॉज जब आपके दांत ठीक होंगे तो ओवरऑल आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, आपकी ग़िज़ाइयत अच्छी मिल रही होगी बॉडी को, एंड यू विल बी इंटैक्ट ओवरऑल एज अ हेल्दी पर्सन। मैं जिला की चीफ फार्मासिस्ट हूँ और हम यहाँ पे एक कैंप के हवाले से आए हैं जहाँ पे हमारे पास तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ की चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें मेडिकल, गायनी, पीड्स, डेंटल और इसके अलावा ENT की सारी मेडिसिन मौजूद है जो कि हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को दे रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन वाइज पेशेंट आ रहे हैं तो हम उनको फुल यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन फुल करके दे रहे हैं। और हमारे साथ जो है हमारे जूनियर फार्मासिस्ट हैं डॉक्टर एचाम मौजूद है। इसके अलावा हमारे 3 असिस्टेंट फार्मासिस्ट हैं जिनमें मिस्टर शाहजेब, मिस्टर अरसलान और मिस्टर इनामुल्लाह शाह हैं, और ये मेरी हेल्पर है और हम सब मिलके इस कैंप को चला रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेड है, कितने एक लोग जो है इससे फैसिलिटेट हो सकते हैं? आपका पुराना एक्सपीरियंस क्या है? हमने तो अपने हिसाब से तकरीबन 1000 प्लस प्रिस्क्रिप्शन फिल करने के लिए तकरीबन हमारे पास क्वांटिटी मौजूद है और तकरीबन 150-200 तो हमारे पास से हो चुकी है प्रिस्क्रिप्शन। तो फर्दर मोर हम ये चल रहे हैं, आप देखिए कितने पेशेंट्स को हम। तो ये सारी मेडिसिन जो हैं आपके इदारे की तरफ से आ रही हैं, डोनर्स भी हैं इसमें? नहीं, ये जिना इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स के लिए आई हैं और सारी कमर्शियल मेडिसिन है, किसी डोनर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
My name is Surya Sultan. I am from 5th semester BSc Nursing. तो आज हमने BP के बारे में बात की. तो आज 20-30 पेशेंट को हमने क्लाइंट को हमने फैसिलिटेट किया. हम अब BP के बारे में बता रहे थे कि BP चेक कैसे करना है, प्रोसीजर्स, उनकी प्रिवेंटेशन कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, नॉर्मल BP, नॉर्मल अगर ज़्यादा हो तो क्या करना है, कम हो तो क्या करना है, कौन सी एमरजेंसी और कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम बता रहे थे. कितने पेशेंट्स आप तक फैसिलिटेट हो गए? सर 20 या 30 क्लाइंट. BSN थर्ड सेमेस्टर. आज हमारा जो है कैंप है बेसिकली हमारे पास हाइट मैनेजमेंट के बारे में बताना है और बता दिए कैसे मैनेज करेंगे. ये हमारे पास फॉर्मूला लिखे हैं जिसमें हम लोग अपना हाइट वेट देख रहे हैं कि हम नॉर्मल कैटेगरी में आती हैं और ओबीस कैटेगरी में आती हैं, अंडर वेट कैटेगरी में. बेसिकली हमारे पास ये जो चार्ट है यहाँ पे हमारे पास स्केल बताया है, ठीक है, कितना नॉर्मल और अंडर वेट कितना में आते हैं. 18 से अगर 24 तक आपकी उसकी रेंज में आते हैं तो आप जो है अंडर वेट कहलाएंगे, ठीक है. उसके बाद 24 से 29 तक जो है ओवर वेट कैटेगरीज में आएंगे. उसके बाद जो है अगर आपका वेट जो है 35 से ज़्यादा है तो आप जो है ओबीस कैटेगरी में हैं. नॉर्मल जो है हमारे पास वेट जो है हमारे पास 18 से 24 तक होता है, ये नॉर्मल होता है. और इससे अगर कम आ जाए तो आप जो है अंडर वेट में आते हैं. ये मेल्स के लिए या फीमेल्स के लिए? मेल दोनों के लिए. अच्छा, तो इसकी एज का बता रहे हैं आप या ये एज और हाइट केजीज का है? ये वेट बता रही है ना आप, तो केजीज में बता रही हैं या ये 18 आपने बताया, तो ये केजीज में है या एज है? ये हमारे पास स्केल की रीडिंग है 18. अच्छा, स्केल है. स्केल होता है, ठीक है. स्केल में हमारे पास 18 से 24 तक रेंज आती है तो आप जो है नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं. अगर आपकी रेंज है 18 से कम आती है तो आप अंडर वेट. तो ये कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर इसको जो है मेजर करते हैं? ये हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है. फार्मूला में हाइट इन किलोग्राम और वेट इन किलोग्राम देखते हैं. हम इसमें हाइट मीटर में देखते हैं. जैसे हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला पुटिंग करते हैं तो फार्मूला पुटिंग करने से हमारे पास BMI की टोटल वैल्यू आ जाती है. इससे हमें पता लगता है कि ओवर वेट है, अंडर वेट है या नॉर्मल कैटेगरी में आ रहे हैं. तो आप यहाँ उनको सजेशन दे रही हैं कि वेट को कैसे कम कैसे करें? आपने मैनेज करना है, कैसे अगर अंडर वेट में आ रहे हैं आपने अपना वेट कैसे बढ़ाना है, ओवर वेट में आ रहे हैं तो आपने अपना वेट कैसे कम करना है, अगर नॉर्मल है तो आपको उससे मेंटेन कैसे करना है. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फीबा अनवर और हम लोग यहाँ पर मेडिकल कैंप के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम उन्हें वेट मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं. जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है उसको कम कैसे करना है और जिनका वज़न बहुत कम है उसको मैनेज करके ज़्यादा किस तरह करना है कि बहुत ज़्यादा भी इतना ना हो कि वो ओबीस हो जाए या ओवर वेट हो जाए. हेल्दी आपने खाना किस तरह खाना है. कितने पेशेंट आए हैं तकरीबन? अभी तक हमारे पास जो है वो 20 पेशेंट आ चुके हैं.